Yes, sir. Okay, so I welcome all the attendees here, and let's just start with our WILP workshop. So let's start with Work Integrated Learning Program. Uh, so WILP, as you all must have heard of this term quite a many times now, and in the our NCSD campaign also, it was highlighted and one of the key uh, submissions. Coming Uh, it is basically for strategic collaborations with industry and skill partners, and it is supported by National Center for Skill Development and Entrepreneurship. The delivery partner of which is ISEC Learn, skilling partner is ISEC, placement partner is Rozgar Mantra, certification partner is SDSU, and academy partner is ISEC Limited. So, need of work integrated learning programs. So, in today's time, if we talk of specifically for industries, the job landscape is changing rapidly, and the accelerated pace of tech innovation and automation uh, has also been seen. So there is an equally urgent requirement of upskilling and reskilling of employees, and at the same time, we also need to skill the fresh entrants to the workforce. So if you see skilling, upskilling, and reskilling, all the necessary uh, requirements has to be fulfilled in today's time for in order to address this um, job landscape change, I must say. And even if we talk of World Economic Forum's research, it has been predicted that a significant number of jobs may experience a tectonic shift in terms of increasing automation, and high number of new roles will likely to be created in the near future. So with that, I would like to start my note that this is why we are talking of WILP. The industry scenario, the skilling scenario has changed uh, from past academic teachings now, and it needs to be considered for taking up this new challenges. So let me talk of the few words that you are reading below. These are work, learn, and earn. So a candidate who can simultaneously, during his education, work in the industry, learn with the institute and the industry, and at the same time earn with some stipend. So during his education only, he can go through all these three uh, things. The one is real-time learning. So if we say real-time learning of practical with theoretical concepts in an organizational setting. So the setting will be of an organization. The learning will be of theoretical concepts. If we talk of hybrid model, whether it's in the classroom setup or online. And at the same time, the student will be in the industry for his practical hands-on. Uh, Third you see is language and personality development skills. So this will help the learner to develop relationships with industry. And at the same time, soft skills will also embedded into his personality, which will just a second. तो नेक्स्ट हम बात करें डिग्री विद करियर. तो यहाँ पर कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सीधे इंडस्ट्री के द्वारा हायर कर लिया जाए. तो व्हेन ही इज डूइंग द डिग्री, एट द सेम टाइम ही नोज दैट ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो हायर भी करेगा इंडस्ट्री. तो दिस मोटिवेट्स द स्टूडेंट. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो अगर बच्चा इंडस्ट्री में जाता है और उस एटमॉस्फेयर में वो टूल्स के साथ फेमिलियरिटी, टूल्स एंड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ जो फेमिलियरिटी गेन करता है, उससे जो उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है वो एक क्लासरूम सेटिंग से संभव नहीं था. साथ साथ उसको इंडस्ट्री स्किल्स बहुत सारी एक्वायर करने को मिलती हैं. तो अब जब मैं इंडस्ट्री स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं खास करके जब हम इंडस्ट्री जाते हैं, तो इफ यू ऑल रिमेम्बर, आप भी लोग जब फर्स्ट टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में गए होंगे तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं अपनी तरीके से, अपनी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना,
और एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग दैट इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फ्रंट फेस। तो ये उसको अपनी एजुकेशन के दौरान ही फेस करने को मिलता है। ये इससे उसके कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। हम बात करें इंडस्ट्री स्किल्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का। तो इतना इतना ज्यादा, मतलब इफ यू से कि इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो मैं आई एम टॉकिंग ऑफ अ टिपिकल इंडस्ट्री वेयर वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल विथ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो वहां पर एक कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है सेफ्टी को लेकर के। और इसीलिए हर इंडस्ट्री इस पर जोर भी बहुत देती है। तो अगर बच्चा वहां पे जाता है और साल भर 1.5 साल उस इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है, तो उसकी इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, सेफ्टी कॉन्शियसनेस काफी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का विकास होता है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी का उसके अंदर निर्माण अच्छे से और होता है। और एक प्रोफेशनल एथिक्स भी जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी बड़ी मात्रा में उसके अंदर वो एक्वायर करते हैं। और ये सारी चीजें शुरू के 1 से 1.5 साल में ही वो बहुत तेजी से स्टूडेंट एक्वायर करता है। ये कुछ मतलब छोटे से में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं कि कैसे वो सिस्टम में आता है, तो उस सिस्टम में आने मात्र से उसके अंदर बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम अम्ब्रेला के अंदर वीवॉक, वीवॉक, एमवॉक प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम की भी। अब हम अभी तो हमने जो बात करी उसमें ज्यादातर एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स हैं अगर वो इस वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को देखे और वहाँ के बच्चों को अडॉप्ट करे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी शुरुआती बात में ही कहा था कि उनको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में अपस्किलिंग के लिए बढ़ावा दे सकते हैं और उनकी ये रीस्किलिंग अपस्किलिंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो नए फ्रेश एम्प्लॉयज उनके पास आते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या उनके इंडस्ट्री को जो फेस करनी पड़ती है कि उनका रिटेंशन नहीं होता है। वो या तो 3 महीने से 6 महीने में बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो करके, क्योंकि वही सारी बातें कि उनको उस एटमॉस्फेयर की आदत नहीं होती है, तो वो अ, उसको छोड़ देते हैं। तो वो उनका रिटेंशन भी बढ़ जाएगा फ्रेश एम्प्लॉयज को लेकर के, अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और वो अपने एग्जिस्टिंग हायर्स की अपस्किलिंग, रीस्किलिंग कर सकती हैं एज पर देयर नीड्स, जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रही है, जिसकी बात हमने अभी करी भी थी। एक एडवांटेज तो ये है। एक एडवांटेज ये है कि अब यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री साथ में काम कर साथ, मतलब दे आर नाउ ऑन द वेरी सेम पेज कि हाँ, हमें साथ में काम करना है। तो जो एकेडमिक डिलीवरी और स्किल्स डिलीवरी में गैप हुआ करता था, कि एकेडमिक डिलीवरी फ्रॉम द डे 1 टू लास्ट ईयर, 4th ईयर तक चल चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री और स्किल्स डिलीवरी जीरो है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ इट हैज बीन टेकन केयर कि उसकी एकेडमिक डिलीवरी और स्किल्स डिलीवरी हैंड इन हैंड और पैरेलली चले। तो सेमेस्टर वाइज प्लान बनता है स्किल्स और जीई का इसमें। इंडस्ट्री खुद अपने आप में एक स्टेक होल्डर है करिकुलम को डिजाइन करने में। तो करिकुलम कस्टमाइजेशन की बात करें कि कई इंडस्ट्रीज के पास आप अभी जाएंगे तो कहेंगे कि जो आप पढ़ा रहे हो वो हमारे बहुत ज्यादा यूज का है नहीं, और हमें तो बच्चे को फ्रॉम द वेरी फ्रेश वे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज को अगर हम देखें, तो अब जब खुद इंडस्ट्री करिकुलम कस्टमाइजेशन में एक स्टेक होल्डर बनता है, तो वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबल स्किल्स ही इम्पार्ट हो। तो वो करिकुलम अपने आप में ऐसा बनता है जो बोथ अकेडमिकली एंड स्किल्स वाइज रिच होता है। तो बेसिक ट्रेनिंग ऑफ, एक और एडवांटेज की मैं बात करूं कि जो बेसिक ट्रेनिंग किसी भी इंडस्ट्री में हम शुरू करते हैं, तो वो काफी मतलब कॉस्ट और टाइम ऑफ इंडस्ट्री लेता है। लेकिन इस मॉडल के साथ चलने पर उनकी बेसिक ट्रेनिंग पहले ही हो जाती है, मतलब बिफोर एक्चुअली गिविंग द फुल टाइम जॉब टू द स्टूडेंट, वो उसको एक बेसिक ट्रेनिंग
ऑलरेडी दे चुके होते हैं, और या यूं कहूँ मैं कि आउटसोर्स की जा चुकी है ट्रेनिंग सेंटर को। तो ये कितना कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव अप्रोच हो गया इंडस्ट्री के लिए कि उनकी बेसिक ट्रेनिंग जिस तरीके से हो गई WILP के थ्रू ही। और मैं कहूँ कि बीवॉक कैंडिडेट जो है वो 70% प्रैक्टिकली होता है। तो बीवॉक हो, बीवॉक एमवॉक, ये ऑलरेडी ये कैंडिडेट ऐसा है जो 70% प्रैक्टिकली है, तो ये किसी भी दूसरे प्रोग्राम से जाहिर सी बात है कि और ज्यादा इंडस्ट्री रेडी है। और सेकंड, ये एट पार विथ एनी डिग्री एज पर यूजीसी है। यूजीसी खुद ये कहता है कि बीवॉक डिग्री जो है वो जहाँ पर भी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी वहां पे ये बच्चा जो बीवॉक किया हुआ है ये एलिजिबल है। ये यूजीसी का भी आप यहाँ पे अप्रूवल भी देखेंगे। NEP की मैं बात करूं, NEP ने भी प्रमोशन किया है वोकेशनल कोर्सेज का। और वो ये खुद कहते हैं कि जो वोकेशनल प्रोग्राम्स पहले से चलते चले आ रहे हैं वो तो चलेंगे ही, साथ साथ रेगुलर UG PG डिग्री प्रोग्राम्स में भी वोकेशनल कोर्सेज को एम्बेड करना है हायर एजुकेशन को। और चैप्टर 16 को अगर आप पढ़ेंगे NEP के, तो उसमें ये बात साफ साफ कही गई है। तो ये जस्टिफाइबल हो जाता है इंडस्ट्री के लिए जब वो अपने CSR में इसको इंक्लूड करता है या सोसाइटल वेलफेयर फंड में इसको देखता है, क्योंकि ये नाउ इट्स इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन। इफ वी कम टू द नेक्स्ट पेज, ये एक पाथ है जिससे उसका स्किल और एजुकेशन बढ़ेगा। तो विद स्किल्स यूनिवर्सिटी कमिंग इन, जो एंट्री क्वालिफिकेशन अब है वो 10th है। So from just after the candidate has passed his 10th class, he can choose this path of skills and education. तो वो स्टार्ट कर सकता है 3 months 6 months के सर्टिफिकेट प्रोग्राम से, and eventually he can look for the DVOC program, which we will discuss later in the coming slides. और DVOC के बाद वो BVOC और MVOC तक अपनी एजुकेशन को अपग्रेड कर सकता है। तो इफ ही इज लुकिंग फॉर इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन, और वो चाहता है कि मैं डिग्री भी करूं साथ साथ मेरी स्किल्स भी डेवलप हों, तो ये जो पाथ है दिस इज द राइट पाथ फॉर हिम। ये कुछ स्नैपशॉट है जिसमें हम ऑलरेडी 41 इंडस्ट्रीज के साथ वर्क इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर चुके हैं। 10,214 कैंडिडेट्स उसमें ट्रेन हुए हैं। 250 इंडस्ट्री पार्टनर्स और 23 सेक्टर्स को कवर किया है और 12 स्टेट्स में किया है। ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन से? तो हमारी पुरानी जो एजुकेशन थी वो कैसे थ्योरी एक्सपेरिमेंट बेस्ड हुआ करती थी, कि आप थ्योरी पढ़ेंगे और लैब में जाके एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर ये मान लिया जाता था कि यू नो दी कंप्लीट थिंग। बट नाउ द थिंग्स आर, थ्योरी भी करेंगे, इसके बाद उसका एप्लीकेशन करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस में भी लाएंगे। तो दिस इज नाउ हैज चेंज। पहले इंडस्ट्री लिंकेज जो था वो बिल्कुल लिमिटेड था कि इंडस्ट्री विजिट करनी है बीच में जाकर, या कुछ छोटी सी इंटर्नशिप्स करनी है आफ्टर हिज कोर्स, वहां तक सीमित था। लेकिन अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ जाने से या अप्रेंटिसशिप आ जाने से एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ गया है लर्नर का इंडस्ट्री के प्रोसेसेस में। और ही स्टेज देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन नाउ। नेक्स्ट हम बात करें करिकुलम जो होता है, वो मैंने आपसे कहा कि वो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन होता है। तो वो प्रश्न ही चला गया कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब वो इंडस्ट्री की कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखकर ही बना है। फिर हम बात करते थे कि पहले जो है बच्चा डिग्री ऑप्ट करता था और वो सोचता था कि मैं अपने करियर के बारे में लेटर ऑन आई कैन डिसाइड, आई विल टेक साइंस। साइंस लेने के बाद मैं चाहूँ तो कॉमर्स की भी ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, साइंस का भी ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। फिर वो साइंस का ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपनी कोर फील्ड में भी जा सकता हूँ, मैं IT में भी जा सकता हूँ। तो दिस डुअल माइंड थिंग कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व विद दिस कमिंग इन। अब स्टूडेंट को जिम्मेदार होना पड़ेगा फ्रॉम 10th और 12th, एंड ही विल हैव टू कॉन्शियसली डिसाइड हिज करियर। कि मैं लेटर ऑन नहीं डिसाइड करना है मुझे, मुझे फ्रॉम टुडे ओनली आई हैव टू डिसाइड दिस। तो वो एक वर्क इंटीग्रेटेड
एजुकेशन को चुनने में जब वो सोचता है तो एक बेहतर करियर ऑप्शन को चुनता है। पहले जो है ये ऑफलाइन लर्निंग होती थी, फेस टू फेस पढ़ाई होती थी। अब ये फेस टू फेस तो है ही, साथ साथ ऑनलाइन हो गई है और अब ऑन साइट भी हो गई है इंडस्ट्री के आ जाने से। अ, ये इसमें से हम कई बातें कर चुके हैं। और अगर एक एक ओवरऑल कहूँ कि 30% जो है वो ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में होता है, और 70% इंडस्ट्री में होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से। ये वो अप्रूवल है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। तो दिस इज वेयर यूजीसी इज सेइंग दैट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जहाँ भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे बीवॉक विल बी वेल कंसिडर्ड। सो दिस इज वन थिंग, एंड दिस इज अ लेटर फ्रॉम यूजीसी ओनली। ये कुछ एडवांटेजेस जिनकी हमने बात करी, लर्नर्स के हम एडवांटेजेस की बात कर ही चुके हैं। कुछ चीज़ें और अगर मुझे ऐड करनी हो तो एक तो जुडिशियस मिक्स ऑफ स्किल्स एंड जनरल एजुकेशन। बच्चे को साथ साथ इंडस्ट्रियल स्किल्स की ही बात हम नहीं कर रहे हैं खाली, हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स। इस तरह के कुछ जनरल एजुकेशन है जो उसे अ, हर जगह पर काम आएंगे, वो भी इसके साथ साथ। तो देयर इज अ वेरी जुडिशियस मिक्स ऑफ स्किल्स एंड जनरल एजुकेशन। फिर हम बात करें कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, प्री डिफाइंड एंट्री एंड मल्टी एग्जिट पॉइंट। स्टूडेंट कैन exit after 1 year also, and then again take entry into second year after giving a gap of some time. अब उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कैसे अपनी एजुकेशन को प्लान करता है। ही इज नॉट स्टक देयर फॉर 3 years or 4 years. He has the freedom, and this gives the student to think with more clarity and creativity. हमारा प्रोग्राम जो है वो एनएसक्यूएफ अलाइंड है। वो अभी क्या उसके एनएसक्यूएफ लेवल्स हैं इसकी भी बात की जाएगी। और ये प्रोग्राम जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करता है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। लेवल ऑफ अवार्ड्स की मैं अगर बात करूं तो 12th पास करने के बाद जब हमारे पास बीवॉक में बच्चा एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट वो करता है, तो उसको यूजी सर्टिफिकेट अवार्ड होगा, और उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग एनएसक्यूएफ लेवल मिलेगा वो 4.5 का मिलेगा। इसके बाद वो या तो एग्जिट कर सकता है विद द यूजी सर्टिफिकेट इन हिज हैंड and NSQF level 4.5 is his ranking. Other or next is he can continue his education. तो वो सेकेंड ईयर भी हमारे साथ रहता है और कंप्लीट करता है तो उसको यूजी डिप्लोमा यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड होगा विद कॉरस्पॉन्डिंग एनएसक्यूएफ लेवल 5। इसके बाद अगेन वो अगर कंटिन्यू करता है तो जो उसका फाइनल ईयर होता है एजुकेशन का, तो वो कंप्लीट करने पर उसे बीवॉक डिग्री मिलती है और 5.5 एनएसक्यूएफ लेवल लाइन हो जाता है। इसके बाद वो फर्दर फोर्थ ईयर में अगर अपनी स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड करता है तो वो पीजी डिप्लोमा होता है अवार्ड, और एनएसक्यूएफ लेवल 6 हो जाता है। एंड फाइनली इन द फिफ्थ ईयर ही डज हिज एमबॉक डिग्री विद द एनएसक्यूएफ लेवल 6.5, एंड नाउ ही इज अ मास्टर ऑफ वोकेशन डिग्री होल्डर। डिप्लोमा इन वोकेशन जो है वो 10th पास स्टूडेंट्स जो है उनकी एलिजिबिलिटी, जो भी 10th पास कैंडिडेट्स हैं वो इसको कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन, ये डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोग्राम सुन करके कंफ्यूजन 1 साल का होता है, बट दिस इज पोस्ट 10th एंड देयरफॉर इट इज 3 years डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोग्राम। बीवॉक की मैं बात करूं तो इट इज एन एनएसक्यूएफ अलाइंड प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया, और ये स्किल्स और प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ में लेके चलने वाला प्रोग्राम है। इसकी भी जो है ड्यूरेशन वो 3 years है, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास है, या क्लास 10th प्लस आईटीआई 2 साल का, वो भी इसमें चलेगा। एईडीपी की अगर हम बात करें, अब तक हम डीवॉक बीवॉक एमवॉक की बात कर रहे थे, अगर हम एईडीपी की बात करें तो एईडीपी इज अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम, एंड दिस इज इन दिस कॉन्सेप्ट
जैसा आप इसमें पढ़ भी पा रहे होंगे, इसमें ये ट्राई पार्टी एमओयू होता है। इसमें तीन पार्टीज होती हैं, जिसमें से एक अकेडमिया होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कह लीजिए, एक इंडस्ट्री होता है, और एक तीसरे होते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल। जो भी जिस भी एसएससी के साथ हम जुड़ के उस एसएससी से रिलेटेड प्रोग्राम्स वो ऑफर इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन डू वन प्रोग्राम ऑफ फार्मा एंड medtech with lifetime sector skill council, and we can attach some pharma industry with us. So SGSU, one industry, pharma industry, and life science sector skill council can do a tri-party MOU where they can offer students medtech, pharma, and pharma and medtech kind of programs. And AEDP is a 3-year apprenticeship embedded degree program. This is also aligned with NEP and UGC guidelines. इसमें वो मल्टी एंट्री और एग्जिट वाली चीज नहीं होती है। इसमें स्टूडेंट को जो है विश्वविद्यालय भी आना रहता है, कैंपस में उसका एग्जाम होता है, और उसको स्टाइपेंड इंडस्ट्री से मिलता है। जो इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप जिसे हम कहते हैं वो जो होगी, वो 2 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर तक की इसमें रहती है। स्टाइपेंड जो है वो 7,000 से 8,000 के करीब इसमें रहता है। और जो ये प्लानिंग है कि उसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कब होगा, ये दिस इज अप टू दी, ये जो ट्राई पार्टी में स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्लानिंग के बाद डिसाइड होता है। तो ये प्रोग्राम पूरा वेल डिजाइंड होता है। इसका जो की बेनिफिट्स है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये प्रोग्राम को करने का सबसे बड़ा एक तो रीजन यही होता है कि इससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें सेक्टर स्किल काउंसिल इन्वॉल्व होता है। तो इट गिव्स देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें, अगर हम डिफरेंट वेज में बात करें कि इसमें इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट्स को क्या है, और इंस्टीट्यूशंस को क्या है, तो मैं वो भी आपको, वैसे तो जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको इसके पहले बताए हैं वो सारे इंक्लूड आप इसमें करिएगा, इसमें भी वो सारे एप्लीकेबल होंगे। साथ साथ मैं सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ कि विजिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीज ऑन कैंपस। कैंपस में ऑर्गेनाइजेशन की विजिबिलिटी बढ़ती है, क्वालिटी कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर, जो भी सीजनल पोजीशंस या प्रोजेक्ट निकलते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, वहां पर उनको क्वालिटी कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। जो उनका खुद का इंडस्ट्रियल स्टाफ होता है उसको फ्रीडम मिल जाती है कि वो और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अप्लाई या और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम कर सके, क्योंकि अब उनके पास जो मैन पावर है वो अपने स्टाफ के अलावा एक एक्सटेंशन भी है उनके पास, जो बच्चा उनके साथ एईडीपी से जुड़ करके काम कर रहा है। तो वो उनके सीजनल प्रोजेक्ट्स हो गए या पोजीशंस हो गए उनमें काम कर सकता है। और साथ साथ वो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होने से थोड़ी सी फ्रीडम रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलती है, जिसकी वजह से वो और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स। तो एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स जो है वो इंडस्ट्री के पास रहता है कि वो उनको जो है वेल यूटिलाइज कर सकता है। साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि जो बच्चे एईडीपी में आते हैं वो एक अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत भी आते हैं इसमें। तो इंडस्ट्री को जो है वो कॉस्ट कम पड़ती है, और जिसकी वजह से वो जो है अपने प्रोजेक्ट में और क्रिएटिव इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं, और उन्हें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर कमिटमेंट जो है वो भी इस समय इसमें नहीं रखना पड़ता। And it is a very proven and cost effective way to recruit and evaluate potential employees. जो भी बच्चे उनके यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं या इस कोर्स को कर रहे हैं, वहाँ वहीं से वो इनका उनका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे उनके आंखों के सामने होते हैं, उनके देखे हुए होते हैं, और उन्हें अलग से कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। उनके कैंपस में आ रहे बच्चे उसमें से जो वेल परफॉर्म कर रहा है वो उनका फ्यूचर एम्प्लॉय बन सकता है। एक एम्प्लॉयर की इमेज भी कम्युनिटी में बहुत इम्प्रूव होती है एईडीपी जैसे प्रोग्राम से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल एंटरप्राइज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उन्हें उनका ध्यान केवल प्रोडक्शन में
और मैन्युफैक्चरिंग में ना होकर के एक एक निर्माण, देश निर्माण के कार्य में भी दिखता है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो पहला एडवांटेज तो स्टूडेंट को एईडीपी में जो मिलता है वो ये है कि उसे डायरेक्ट प्लेसमेंट की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। हम बात करते हैं तो उसे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलती हैं जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, जो वो एक इंडस्ट्रियल सेटअप में ही सीख सकता था। उसे नेटवर्किंग स्किल्स का भी यहाँ पे एक मौका मिलता है कि वो जब फील्ड में रह के काम करता है तो उसे उसके साथ, उस इंडस्ट्री के साथ और कौन से ओईएम जुड़े हुए हैं और कौन से साथ में पार्टनर्स जुड़े हैं, सबके साथ एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है और उसे अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का भी मौका मिलता है और उसके न्यू कनेक्शंस भी बनते हैं। अ, एक अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि वो 3 महीने या 4 महीने बाद जॉब जो है वो छोड़ देते हैं। तो अगर वो पहले से ही इंडस्ट्रियल सेटअप में होंगे और इंडस्ट्रियल सेटअप में होंगे और वो अप्रेंटिसशिप में 6 महीने, 1 साल जैसे या 1.5 साल जैसे समय दे करके उस इंडस्ट्री को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो वो उनको उसी समय क्लियर हो जाएगा कि मुझे कंटिन्यू करना है या मुझे कंटिन्यू नहीं करना है इस फील्ड में। और इतने लंबे समय में ट्रेनिंग लेने से उनको ये भी होगा कि दे विल बिकम कंफर्टेबल विद इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, जो आमतौर पे वो जॉब के प्रेशर के साथ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं कि भाई इंस्टीट्यूशंस को क्या बेनिफिट है, तो उनके इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, उनका प्लेसमेंट प्रोसेस इजियर हो जाता है, इंस्टीट्यूशन की अपनी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्रांडिंग बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इंस्टीट्यूट को भी होते हैं ऐसे किसी प्रोग्राम से जुड़ने पर। हम अब आगे बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में, नैप्स और नेट्स के बारे में आपका एक अलग से वेबिनार होगा जिसे उद्दीपन जी डील करेंगे। तो उसमें आपको डिटेल अप्रेंटिसशिप के बारे में और भी नैप्स और नेट्स को लेकर प्राप्त होगी। अगर मैं प्रोसेस फ्लो की बात करूं कि अब ये काम होगा कैसे, मतलब ये तो सारी बातें हो गई कि इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है, स्टूडेंट को क्या फायदा है, ये प्रोग्राम का नेचर कैसा है। लेकिन इसका इसका प्रोसेस फ्लो कैसा होगा? तो इसका प्रोसेस फ्लो ऐसा होगा कि जो भी आ, हमारे साथ इस WILP प्रोग्राम यानी कि टीवॉक, वीवॉक, एमवॉक में जुड़ना चाहता है, उसको सबसे पहले आईसेक्ट जो हमारी पेरेंट बॉडी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आईसेक्ट इज अवर पेरेंट बॉडी एंड इट इज 39 years old social leading social enterprise and which is contributing in skill development from last many years. uh, उस, उसी के ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वी हैव 6 यूनिवर्सिटी। एंड इसमें मैं विशेषकर बात स्किल्स यूनिवर्सिटी की करना चाहूँगा कि मध्य भारत में हमारा पहला स्किल्स विश्वविद्यालय है और ये NEP और NSQF अलाइंड विश्वविद्यालय है पूरी तरह से। हमारे सारे पाठ्यक्रमों में QPs को एम्बेड किया जाता है और वो NSQF अलाइंड है। हम NEP को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्किल्स यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो वी गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हमारा तो नेचर ही ऐसा है कि हमें इंडस्ट्री के साथ ही अपने प्रोग्राम्स को करने हैं क्योंकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो या फिर हम अगर COE भी डेवलप कर रहे हैं तो हम, आप देखेंगे हमने COE डेवलप किया है, जिसकी बात इस स्लाइड में आगे आएगी। हीरो और हुंडई जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर में हमने COE सेटअप किए हैं। तो जो ट्रेनिंग इन इन कैंपस हो रही है विद द हेल्प ऑफ COE, दैट इज ऑफ ऑल्सो ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल। और जो COE यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं है वहां पर हम इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो ये छोटा सा ब्रीफ है। अ, अब हम बात करें कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो आपको आईसेक्ट का स्किल पार्टनर बनना होगा। आपको आईसेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा जिसके बाद आप हमारे पार्टनर बनेंगे, स्किल पार्टनर बनेंगे। और आपको एक SKP ID अलॉट होगी जो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, अ, जो हमारे फ्यूचर कम्युनिकेशन में इजियर रहेगी आपसे कम्युनिकेट करने में। इसके बाद मैं बात करूँ, वंस यू बिकम द आईसेक्ट स्किल पार्टनर, आपको एक MOU करना पड़ेगा, मतलब आपको एक MOU करवाना पड़ेगा बिटवीन द इंडस्ट्री एंड SBSE
मैं मान के चलता हूँ कि कई लोग जो हमसे जुड़ेंगे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी खुद की इंडस्ट्री होगी। तो इट्स लाइक विन विन कि आप सेंटर भी हैं और इंडस्ट्री भी हैं, तो आपको बाहर नहीं जाना एमओयू करना है, हम आप ही के साथ एमओयू कर सकते हैं। अगर आप आईटी के सेंटर हैं तो यू आर अवर इंडस्ट्री वेयर वी कैन डू द एमओयू विथ यू। और इसके अलावा लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक्स में, अपैरल में, हेल्थ केयर में भी कुछ करना चाहते हैं तो आपको उनसे रेलेवेंट इंडस्ट्रीज के साथ एसजीएसयू का एमओयू कराना रहेगा। जैसे ही एमओयू हो जाएगा तो उस एमओयू में विशेषकर यही बातें रहती हैं कि हमारा रोल क्या है, उनका रोल क्या है। जिसमें से हमारा रोल जो है वो रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन में जाता है, और उनके रोल की हम बात करें तो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल वर्क स्पेस की बात आती है कि आप प्रैक्टिकल वर्क स्पेस हमको देंगे, आपके यहाँ बच्चा ट्रेनिंग करेगा, और आप एक प्रोविजन रखेंगे जिसमें कि आप बच्चे को अडॉप्ट भी करें। तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द प्रोविजन कि वो ऐसा रखेंगे। एमओयू हो जाने के बाद हम अ, जो हमारे स्किल पार्टनर आप बने हैं, हम उम्मीद करेंगे आप स्टूडेंट मोबिलाइजेशन करें और अच्छी संख्या में बच्चों को इस प्रोग्राम में एनरोल कराएं। उसके बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। वो पोर्टल आपको जब जैसे ही आप आईसेक्ट के स्किल पार्टनर बनेंगे आपको वो पोर्टल और उसके लॉगिन आईडी मिल जाएंगे। उस लॉगिन आईडी से आप अपना अकाउंट देख सकते हैं आईसेक्ट ऑनलाइन पे, और वहीं पे जा करके आप एडमिशन भी कर सकते हैं बच्चों का। उस पूरे पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन हो गया, री रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, वॉलेट हो गया, ये सारी सुविधाएं आपको उसमें मिलेंगी। इन सब पर अलग अलग से भी सेशन किए जा सकते हैं, जैसा कि अगर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो इसके बाद फिर स्टूडेंट के लिए लर्न अर्न और ग्रो करने का रास्ता खुल जाता है। आईसेक्ट लर्न हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म है। आईसेक्ट मूक भी है हमारा, जिसकी मदद से बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे को प्राप्त हो सकती है। और जिस इंडस्ट्री के साथ आपने एमओयू किया है वहाँ पे बच्चे का ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है। कुछ ऑन द जॉब सर्टिफिकेट हमें लगेगा, ट्रेनिंग रिपोर्ट हमें लगेगी, और अटेंडेंस शीट हमें इंडस्ट्री से लगती है। तो ये फॉर्मेट्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसे आप फिर पुनः इंडस्ट्री के साथ साझा कर सकते हैं, और वो हमको फिर आपके थ्रू वापस प्राप्त हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। तो ये कुछ मोटिवेशन के फोटोग्राफ्स हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स हैं। चैट से एक बार देख लेते हैं अगर कोई क्वेरी तो नहीं है। इस पर अपन सेशन के बाद चर्चा कर लेंगे। अ, ये प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। तो डिप्लोमा ऑफ वोकेशन की बात करें, जिसकी एलिजिबिलिटी मैंने 10th पास बताई थी, तो हम 7 सेक्टर्स में 12 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। सेक्टर्स की मैं बात करूं तो विशेष रूप से रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, हेल्थ केयर, इस तरह के सेक्टर्स हैं और इनके अंतर्गत ये प्रोग्राम्स हैं। अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूं तो डीवॉक इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट है हमारे पास, डीवॉक इन फार्मेसी असिस्टेंट है। बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी 12th पास है, और इसमें भी हम 23 सेक्टर्स में 40 प्रोग्राम्स अराउंड ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि ग्रीन जॉब सेक्टर में हम बीवॉक इन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल गुड सेक्टर की बात करें तो बीवॉक इन प्रोडक्शन है। अगर हम बीएफएसआई की बात करें तो अकाउंट एंड टैक्सेशन है। एग्रीकल्चर में प्रोग्राम्स हैं, ऑटोमोटिव में भी प्रोग्राम्स हैं। हेल्थ केयर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही वेरीड नेचर के ये प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पेशेंट केयर मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग केयर हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में बीवॉक इन मल्टीमीडिया भी हम लोग देते हैं। लॉजिस्टिक्स में बीवॉक इन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन मैनेजमेंट है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो बीवॉक इन होटल मैनेजमेंट हो गया, बीवॉक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर आप हेल्थ केयर पर जाते हैं तो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री जो है वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स होंगे, तो उनके साथ एमओयू कराना रहेगा। अगर हम आईटी की बात करें, या चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, रिटेल की। तो जो आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर आप बड़े आउटलेट्स में बात कर सकते हैं ट्रेनिंग की। आप अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं,
वहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो है वो अपना समय ओजीटी में बिता सकता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो होटल्स हो गए। तो ये वो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं सेक्टर्स के हिसाब से, जिनके साथ आप विश्वविद्यालय का एमओयू करवा सकते हैं, और ये प्रोग्राम्स को हम उस तरह से रन कराएंगे। फिर मास्टर ऑफ वोकेशन की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी बीवॉक है। इसमें हम फिलहाल 6 सेक्टर्स में 6 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, बट इवेंचुअली ये ग्रो होकर सारे बीवॉक प्रोग्राम्स के साथ मैप हो जाएंगे। तो एम वॉक जिन सब्जेक्ट्स में हमारा बी वॉक है वहाँ पे हम एम वॉक भी सब में ऑफर्स करेंगे इसमें। इनफैक्ट आप ये ना सोचिएगा कि यही प्रोग्राम्स हैं जो रहेंगे। अगर आप इंडस्ट्री के पास जाते हैं, आप या आप खुद इंडस्ट्री हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोग्राम की बहुत डिमांड है, और ये अगर इस तरीके से करा जाएगा, ये उसका करिकुलम रहेगा, तो इसका बहुत स्कोप है, इसमें बहुत प्लेसमेंट्स बढ़ेंगे, तो हम उस प्रोग्राम को भी लॉन्च कर सकते हैं। हम नेसेसरी अप्रूवल्स उसमें हमें लेने होंगे। हम करिकुलम डेवलपमेंट में आपके साथ बैठकर काम कर सकते हैं, और एक अच्छा करिकुलम डेवलप किया जा सकता है, एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता है, जिसे आप फिर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एसजीएसयू के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश की सेंट्रल इंडिया फर्स्ट स्किल्स यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी 2F एक्ट से संबद्ध है। एनईपी के प्रिंसिपल कमिटेड है, और ये एजुकेशन विद स्किल्स की बात करती है। 41 यूजीसी अप्रूव्ड स्किल्स प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। हमारे साथ आईसेक्ट जैसा नाम जुड़ा है, जो कि 39 ईयर्स से अपनी लीगेसी मेंटेन किए हुए है। 28 इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे हैं, जो स्किल ट्रेनिंग में हमारी मदद करते हैं। 425 ये पूरे ग्रुप का प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं हमारे। अ, ये एसजीएसयू के बारे में बातें कि हम, ये बातें सारी हमारे हो गई है। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको कैंपस में मिलेंगे। होलिस्टिक ग्रोथ की हम बात अगर करेंगे तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, फिजिकल एजुकेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर। दीज आर आवर पार्टनर्स। वी आर ऑल्सो we have also collaborated with German Varsity for international programs, and these are our few other collaborations. ये कुछ snapshots, photographs. These are the awards that we have received in the journey so far. Um, our chief mentor, uh, Honorable Santosh Chaubey, uh, sir, he is the alumni of National Institute of Technology, and he has also served in Indian Engineering Services and Indian Administrative Services also. So, a very profound literature person also. The organization is uh, backed by such a person who is in himself is an university, I must say. So that is the beauty of this organization. Our Chancellor, Dr. Siddharth Chaturvedi sir, under his leadership, we are working in SGSU, and the new age education programs are driven by his vision and mission. Dr. Ajay Bhushan is our Vice Chancellor, a very profound person in electronics and related sectors. Has a very uh, key role in the policy of education. Dr. Sitesh Kumar Sinha is our registrar. Under his leadership, we are doing numerous programs and doing all the activities under his leadership in the AGSU campus. Uh, a great leader uh, to be get to be under with. So very proud. We are very proud of him. Proud of his association with us. These are our key skill mentors. Uh, Preeti Maheshwari, Dr. Preeti Maheshwari is the Dean in Future Skills. S. Veena Dhari is Dean in Information Technology.
Satyendra Khareji is Dean Science. Dr. Tina Tiwari is Dean Humanities and Liberal Arts. Dr. Anurag Sir is Dean Emerging Technologies. Dr. Nitin is Dean Banking, Finance and Commerce. And Dr. Rajkumar Sir is Dean of Engineering and Technology Skills. These are our placement partners. If we talk of, if we go by NCRF, so the first year is certificate, 40 credits, and every year is actually 40 credits. And you can see the pathway. It starts with certificate, then UT diploma, then BVOC. The beauty of BVOC is that post BVOC, AICTE has notified that a candidate can get lateral into BTech in fourth year. So after BVOC can do his fourth year BTech also, or he can do the PG diploma. Fifth year is of MVOC and the sixth year is of MTech. Even MBA can also be planned for a BVOC candidate. If he has done BVOC in MBA allied field, MBA can also be the path ahead. These are what UGC is saying for BVOC degree. Uh, it has been already shown to you in the approval letter. Uh, I think I have already mentioned about how all these advantages that you get here. The Center of Excellence, which I was mentioning, we have Center of Automotive Technology, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ टू व्हीलर में we are providing training, and with this center only we have also collaboration with Hyundai, where we are providing four-wheeler training programs and other diploma programs. Center of Power Electronics is there, where a German-based company called Lucas Newley, we have established a very good power electronics lab. We have a Center of Internet of Things, IoT. So such kind of center of excellence are also there. ISECT, as I told you, it has a pan-India presence in 28 states, 6 union territories, 650 districts, 3,000 blocks, and 11,000 panchayats. It has offices, I must say, 49,000 centers, 22 state offices, and 38 regional offices. So you can see the magnitude of this organization, the reach of this organization. Already 31 lakh people have been trained. Uh, Also, big numbers are there in the empowerment, if you see. And these are the ISEC group of universities in which I have already mentioned Spoke Global Skills University. Apart from this, we have Rabindranath Tagore University, which is NAC accredited and consecutively getting an IRF rank band from last 6 years. Uh, Dr. C.V. Raman University, both in Bilaspur and Vishali, and also in Khandwa. ISEC University in Jharkhand. So I think that's all from my side. Uh, Uh, Ketan sir, yeah, please. जी actually few people has raised few queries in Yeah, the chat box. तो एक बार आप उन्हें देख लेते, उन्हें clear कर देते. And if anybody has another query, kindly raise your hands. So we would allow you to talk, or we can just read your message. okay, okay. So let me just go through the comments first. Uh, Running a registered trust in Bangalore, I want to collaborate with SGSU, but I need to work on the strategy. So Bharatji, yeah, I just read that yes, definitely we can collaborate with your registered trust. Uh, you want to do this in human resource management to the HR professionals. Okay. Uh, okay. We don't have the infrastructure, but a registered trust and association. But you can help us in promoting the skill development activities. You want to become the mediator between the industry and the SGSU. Okay. You are very much welcome, Bharatji. We can plan how to step you in with us with your registered trust. So let me just provide you my email ID here, where you can mail me your
your all the details, and I will share the initial brochures and everything with you. And later on, we can uh, do the communication for whatever uh, concerns you must be having, queries you must be having. So yeah, I have provided my email ID, and this is for everyone available. You all can mail me uh, about yourself, and we can definitely collaborate. Yeah, you can definitely submit your action plan, and we would love to uh, collaborate with you. Uh, can an individual consultant engage with ISIT? Definitely, Lalitesh ji. We have opportunities in every direction. How it will be done is a different question, but we can engage. You can also uh, mail me, or how do you plan to collaborate with us? We can take this forward. Uh, Next is if you Sukant ji is asking for the financials involved and the process to start. So if you talk of the standard fees, uh, so let's start with becoming the SKP partner. So the initial cost, if you already have the infrastructure, one lab, one classroom, and a reception area, if you already have a already running skill programs or have a skill development center, then I think the cost is only of around 20,000 or 25,000, where you can become the ISIC center and later on do the BWOC programs with the help of by taking any one academy in which you want to do the courses. So if you have the infrastructure available, if you don't have the infrastructure, then the financial how the financials will be involved will have to be looked after. But you can also definitely let us know that what all facilities do you have and how can we connect. Uh, we can definitely find out a way, and we'll also provide you the financials in terms of uh, whatever area you are planning for. We can provide you the ISEC fee structure also. Yeah, I already answered this question that yeah, the uh, online version is available. At the same time, if you have a classroom space, you can also run the academy courses where you can run the short-term certificate courses. The initial investment will vary. If you already have a classroom space and a lab space, the initial investment, as I mentioned, is around 20 to 25,000. And if you want to connect in other way, then we will have to first discuss your plan. मेरी आवाज आ रही है सर? आई एम ऑडिबल? हेलो Yes, yes, sir, you are audible. sir, I have one question. As an individual, I in panel with that I said as a tourism and hospitality professional. So my question is that how can we involve in all that in content making and individually participation? Can you confirm all that, please? So Chandrasekhar ji, you are already an ISEC center I'm panel for 1 year. impaneled for 1 year. Yeah. Yeah, I think every center has to renew after 1 year. You must be having an SKP ID, I suppose. And are you doing any courses as of now? Short-term courses? No, no, I'm not doing any courses. As I'm a tourism and hospitality professional, sir. Okay, okay. So you have I'm purchased the expertise academy. in tourism and hospitality. I joined as a master trainer. So Okay, how can okay. we how can I give all that expertise in a particular tourism and hospitality domain? Okay. Making of Uh, content development. okay. Is it only about content development, or you can also help us with the industry connects? So I think it's content development and all lecture delivering all that and assessment also. Lecture delivery. Okay. So one thing, Chandrasekhar ji, that we can plan for is that your presence in our ISEC Learn platform, where Sure. you can deliver the video lectures for BVOC in tourism and hospitality courses. Oh, Uh, there is the one scope that I see. One scope is in developing of modules of tourism and okay. hospitality. Sure, So sure. yeah, so there are, yes, there are opportunities in content development as well as in video lecture formation, and you can also take
take session of our SMEs where you can teach them or train them Okay, fine. how they can develop the content of tourism and hospitality. That can also be planned. Okay. So if you talk So, if you talk of your scope, it can be in outsourcing the development of modules, in developing the video lectures of tourism and hospitality, and taking the live sessions of our faculties where you can help them in okay, not only okay. in tourism and hospitality but overall how, as you have been the master trainer, you know these all these terms very well, Okay. how they can do the content development, how they can use the present tools in the market, and what key things they need to take care of. So these are the scopes that I see. Okay, fine. So my last question is that actually, sir, I'm working with a different organization right now, working with the Hotel Management Institute. So Okay. at the end of month, sir, my overall my involvement in your organization, how much involved at the end of month? Matlab working like Uh, you're giving like 3,000 per hour, so how much I involved in all that, no? So I plan accordingly. okay. Financials will be discussed with you. But if we talk of Involvement, sir, involvement, my question is the involvement at the end of month. How many hour you will give something like that, no? yeah, I got it. Uh, so sir, it completely depends on you that how much time you have. We can plan accordingly. Okay, There's fine, no fine. such criteria that we need your this many hours in this month. That can be planned. Yeah, definitely. We will look for different master trainers, and if we have a high commitment, we need your I think weekly set number of hours that we can discuss with you. If you have the availability, definitely we can look forward. So Fine, we sir. can also plan accordingly, according to your suitability. Okay, so fine, fine, fine. Thank you. Yeah, you're welcome. Any other questions? Any other discussion that someone want to take up? कोई और क्वेश्चंस है? एनी अदर क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज? केतन जी, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी भुवनेश जी नमस्कार। या हेलो केतन जी, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Actually, I am in a NGO setup. So हम पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो मेरा ये पूछना था कि अगर मैं इसको एनरोल करूँ यहाँ पे भुवनेश्वर पे, अपॉर्चुनिटी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए, तो फ्रेंचाइज का आपने तो ऑलरेडी बोल दिए कि अगर क्लासरूम सेटअप है, रिसेप्शन है, तो इन्वेस्टमेंट का ज्यादा जरूरत नहीं है। जी तो टू द पिन पॉइंट हम एग्जैक्टली कैसे इसको स्टार्ट करें, मतलब एट द ग्रास रूट लेवल कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो? ग्रास रूट्स की बात करें सर तो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस की जरूरत है, जैसे कि मैंने आज आपसे WILP की बात करी। इसी तरह हमें बात करने की जरूरत है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो सकते हैं, उन सभी से कैंपेन करके या किसी वर्कशॉप करके उनसे सबसे बात करने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है कि इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इस तरह का इंडस्ट्री के साथ वो लोग मिलकर के ये प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये एडवांटेजेस हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आप सभी के साथ ब्रोशर्स और सारी चीज़ें शेयर की जा चुकी हैं, तो और आप लोगों के साथ ये सेशन हो रहा है, तो आप लोग वेल अवेयर होते जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। इसी तरह इसको आगे, सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करना आई थिंक ग्रास रूट लेवल पर सबसे पहले ये जरूरी है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हम पास ऑन करेंगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्यूरियोसिटी को हम जन्म दे देते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस क्यूरियोसिटी को हैंडल करें, मीट करें, बहुत सारे फोन कॉल्स के माध्यम से उसको एड्रेस किया जाएगा। सेंटर बनना, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको एक एग्रीमेंट के साथ और एक सर्टेन प्लान के साथ फॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो वहां पे इशू नहीं आएगा, बट इशू आएगा मोबिलाइजेशन के समय पे, जब यू विल बी लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स। तो वहां पे अगर अवेयरनेस होगी तो स्टूडेंट्स को पता होगा इस प्रोग्राम के बारे में। एक अवेयरनेस आपके लेवल पर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप भुवनेश्वर में हैं, वहां पर क्या इंडस्ट्रियल सेटअप है, वहां पर कौन सी, आपको लोकली देखना होगा कि आपके यहाँ कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें मैन पावर चाहिए।
जैसे हमारे यहाँ भोपाल में मंडीदीप है, मंडीदीप कहता है कि हमें अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए लॉजिस्टिक्स में, रिटेल में, और हमें नहीं मिलते हैं, और हमें वी वांट देम इन बिग नंबर्स, 200 300। तो हमें पता है कि अगर हम लॉजिस्टिक्स में, रिटेल में एक अच्छा व्यक्ति उनको देंगे तो दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं कि आप अपने यहाँ इंडस्ट्रीज का सर्वे करें, एक एक विजिट्स करें इंडस्ट्रीज में, और वहाँ का क्या सिनेरियो है, वहाँ कौन सी सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है जो फ्लरिश कर रही है या जो फ्लरिश कर सकती है, और जिन्हें रिक्वायरमेंट है लेकिन उन्हें वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही आज की डेट में, मतलब वो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है विथ सब स्टैंडर्ड्स। तो हम उन्हें स्टैंडर्ड्स का व्यक्ति दे सकते हैं फ्रॉम डे वन। तो एक अप्रोच हो गया अवेयरनेस का ग्रास रूट लेवल पे जो स्टूडेंट्स तक जाएगा। एक अप्रोच हो जाएगा इंडस्ट्री को ये समझाना कि ये उनके लिए क्यों फायदेमंद है। फिर इसके साथ साथ इंडस्ट्री को हमें हमारा इंडस्ट्री को समझना कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसे हमें टैप करना चाहिए भुवनेश्वर में, और स्टूडेंट्स को फिर ये बताना स्किल गैप एनालिसिस के माध्यम से कि ये स्किल गैप है भुवनेश्वर में, यहाँ पर ज़रूरत है लोगों की। अगर आप ये प्रोग्राम करते हो तो आपको वी कैन अश्योर यू दी प्लेसमेंट्स। इस तरह का अगर एक माहौल बनाया जाएगा जहाँ पर हमने इंडस्ट्री को भी टैप कर लिया, स्टूडेंट्स को भी टैप कर लिया, और एक सिचुएशन बनाया। स्टूडेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपको स्किल ट्रेनिंग मिल रही है और साथ साथ आपको एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिल रहा है। तो जो स्किल्स और डिग्री का हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही यूजफुल होगा उनके लिए। तो इस तरह से सुकान जी मुझे लगता है कि शुरुआत अगर की जाएगी जी तो जी जी सफलता जी। मिलेगी। अच्छा, एक एक आखिरी क्लैरिफिकेशन मेरा, जो हम्म। स्टूडेंट लोग से हम फी स्ट्रक्चर पेमेंट वो कैसा है, क्योंकि आपका जो कैटलॉग ब्रोचर मैंने यस। देखा था जो यस। श्रीवास्तव वो भेजे थे, तो इस पे कोई हाँ, पेमेंट का कोई डिटेल्स नहीं है, तो उसका पार्ट क्या है? मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताया था कि जैसे ही आप सेंटर बनते हैं आपको वो पोर्टल मिलता है, और उस पोर्टल पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलते हैं। जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस पोर्टल की स्क्रीन के फर्स्ट पेज पे फिर आप जाएंगे तो वहाँ पे कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको आपका वॉलेट दिखेगा। दैट दैट इज द प्लेस वेयर आप जब अपने अकाउंट से आईसेक्ट के अकाउंट में पैसे डालेंगे तो वो वहाँ उस वॉलेट में दिखेंगे, और उस वॉलेट के थ्रू आप स्टूडेंट्स का फीस भर सकते हो उस पोर्टल पे। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। फीस की अगर मैं बात करूं तो आपने फीस स्ट्रक्चर देखा ही होगा। 14,400 और 16,400 ईयरली फीस ऐसी है बी वॉक प्रोग्राम्स की। तो वहां पर आप जो है ये जो फीस है ये आप वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हो हर स्टूडेंट के साथ, और आप बल्क फी पेमेंट भी कर सकते हो एक साथ कई बच्चों की। इसके अलावा 2,000 रुपीज का एग्जामिनेशन फी होता है जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसी वॉलेट में आप पैसा फिर से डाल करके जैसे सपोज करते हैं कि आपके 10 बच्चे हैं, तो आप 2,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से जब पैसा उसमें डालेंगे तो जैसे 20,000 रुपये आप उसमें डालेंगे तो आप उनकी फिर एग्जाम फॉर्म भर करके एग्जाम फी पे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस तरीके से आप फी पेमेंट करेंगे। हमारा हम आपसे फी लेंगे आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, लेकिन हमारा स्टूडेंट से फीस का कोई इंटरेक्शन नहीं है। स्टूडेंट से फीस का सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका होगा, और ओके उसमें कितनी फीस आपको रखनी है ये आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मार्केट को समझना होगा कि भुवनेश्वर पे आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर स्टूडेंट्स कितना पे कर सकते हैं, कितना प्रोग्राम्स के लिए देना चाहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फीस प्लान करनी पड़ेगी। अगर वो मार्केट बहुत ज़्यादा आपके आपके अनुकूल नहीं है तो वी कैन ऑल्सो सपोर्ट यू टू सम एक्सटेंट। इस तरीके से जी आपको फाइनेंशियल्स उसमें रख के डालने पड़ेंगे। जैसे जी हमारे जी पास गुड़गांव का सेंटर है या केरला के सेंटर हैं, तो फीस कैन गो अप टू 80,000, 60,000, 80,000, and we are also seeing persons doing with 20,000, 25,000. It depends on you how is the place allowing you and your center is allowing you. ओके ओके।
मतलब थैंक यू। मैं आपको एक it's a very good from if you talk of, from business point of view, it's a very good area. ओके, तो जो फैकल्टी या टीचिंग पार्ट हमको हमको टेक केयर करना पड़ेगा लोकल लेवल पे। आपका बच्चा जो है वो मोस्टली इंडस्ट्री में रहेगा। जब वो इंडस्ट्री में नहीं है तो आईसेक्ट मूक और आईसेक्ट लर्न के माध्यम से वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है। अ, अच्छा अच्छा। इसमें अगर आपका, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, फैकल्टी वाली बात कब आती है। जैसे मान लीजिए आप अ, आपकी एक 30 कंप्यूटर्स की लैब है, या सपोज करिए 25 कंप्यूटर्स की एक कंप्यूटर लैब है, और साथ में आपका एक क्लासरूम है। तो और आपके पास नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बीवॉक इन आईटी को रन करने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है, और तो आप इन यू आर इन इटसेल्फ अ बीवॉक आईटी इंडस्ट्री। तो अगर आप वहां पर एक फैकल्टी को अपॉइंट करते हैं, और वो आपके बीवॉक इन आईटी के क्लासेस लेती हैं, एक या दो फैकल्टी, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सफिशिएंट विथ योर लैब टू डू दिस प्रोग्राम, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन आईटी। इन एवरी अदर सेक्टर, चाहे अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करें, वहाँ आपको उसको किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप अपनी ही लैब वैसी बना लें, आपकी जो लैब हो, लेकिन वो फिर कॉस्ट भी देखनी होगी। तो आईटी में तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। बाकी जगह पे मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर ओन लैब, यू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री, और आप एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हमारे साथ कर लें। आपका जो कॉस्ट है वो भी निकल जाएगा, आपको आपके प्रॉफिट्स अलग रहेंगे, और वी विल टेक आवर शेयर। इस तरीके से ये ओके, हो सकता है। थैंक यू थैंक यू। मैं आपको एक ईमेल भेजा हूँ, आप अगर ये सारी ओके, चीजें अगर है कोई डिटेल्स थोड़ा भेजिएगा तो आई कैन गो थ्रू। डेफिनेटली। मैं आपको यहाँ पर या अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, इफ यू वांट टू अच्छा, कनेक्ट। तो दिस इज फॉर एवरीवन, ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर। ओके सुकांत जी, थैंक यू सो मच। हेलो। या लक्ष्मी जी, या केतन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पंजाब से बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर संगरूर से। जी तो अभी मैं राइट एट द मोमेंट मैं इमिग्रेशन में हूं, और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट्स करता हूं। जी तो अभी मैं अगर आपके साथ एसोसिएट होता हूं, तो क्योंकि जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पास जो स्किल है वो मोर देन 95-99% वो लैकिंग होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है। हम्म दे स्टेट कम आउट ऑफ 10+2 एंड फ्लाई अब्रॉड। तो वहां जाके उनको काम करने में बहुत दिक्कत आती है, जो भी टेक्निकल काम होते हैं वो उनसे होते नहीं है। हम्म। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं कैसे इसको शुरू कर सकता हूँ। जी जी, गुड क्वेश्चन लखदीप जी। ये आज के समय का रिलेवेंट प्रॉब्लम भी है, जिसे सॉल्व करना है। अ, इसमें देखिए, सबसे पहली चीज जो आप जिस पर बात कर सकते हैं वो है एनएसक्यूएफ। जब हमने एनएसक्यूएफ हम बोलते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये जिस तरह हम लोगों का स्किल फ्रेमवर्क है, इस तरह आप तो खैर इस फील्ड में हैं तो आप जानकारी रखते होंगे, दूसरी कंट्रीज जी का भी स्किल फ्रेमवर्क होता है। और जी द कॉन्सेप्ट ऑफ जो ये स्किल फ्रेमवर्क आया, ये वहीं से आया कि हमको ग्लोबल वर्कफोर्स क्रिएट करना है। जी हमें ग्लोबल वर्कफोर्स क्रिएट करना है क्योंकि आने वाले समय में बाकी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिमांड आने वाली है वर्कफोर्स की। और वो जी उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, मतलब स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। जी तो अ, अब यहाँ पर बात आता है कि उसको कैसे करें। तो इसके लिए सिर्फ आप और हम नहीं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जैसे सबसे बड़ी कोशिश तो गवर्नमेंट की यही है कि स्किल्स विश्वविद्यालय बने। स्किल्स विश्वविद्यालय बनने के पीछे सोच यही थी। एक तो ये थी कि स्किल्स को
उस दर्जे से नहीं देखा जाता था जिस जिस दर्जे से स्किल्स को देखा जाना चाहिए। मतलब जी हम इंडस्ट्री पे जब जाते हैं तब तो स्किल्स की बहुत बात होती है, लेकिन जब हमने एजुकेशन की बात करते हैं तब वहां पर हम स्किल्स को दोयम दर्जे का, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को दोयम दर्जे की तरह देखते हैं। बिल्कुल। जबकि यही स्किल प्रोग्राम्स अगर आप चूंकि फॉरेन कंट्रीज को समझते हैं तो आपको पता होगा, अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक प्लम्बर है या एक ट्रक ड्राइवर है, उसकी सैलरी एट पार विद एक आईटी में जॉब करने वाले व्यक्ति, या उसमें भी उससे ज्यादा भी होती है। तो ऑब्वियसली। ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे यहाँ है वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे एवरी वन इज गेटिंग एन हैंडसम सैलरी इफ ही इज स्किल्ड और शी इज स्किल्ड। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्किल्स विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। हमको हम आपको पता होगा नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर बन गया है, जिसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन पैक्स आ गए हैं। ये क्वालिफिकेशन जी पैक का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया कि हमको थ्योरी पढ़ानी नहीं है, हमको तो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है बच्चों में। तो हम क्यूपी के मॉडल में पढ़ाएं बच्चों को। क्यूपी का मॉडल जो होता है वो ऐसा होता है कि क्या क्या उसको नॉलेज होगी, क्या क्या चीजें वो कर पाएगा ये कोर्स करने के बाद, हैंड्स ऑन क्या कर पाएगा, उसके उसके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग किन चीजों को हो जाएगी। तो वो इस तरीके से डिफाइंड होता है क्यूपी। आप अगर किसी भी सेक्टर स्किल काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पैक्स मिलेंगे। उसमें से किसी भी क्वालिफिकेशन पैक को आप देखेंगे, उसके मॉडल करिकुलम को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार यही तो हम बात कर रहे हैं। हमें 5 यूनिट में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे को इन कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से पढ़ाना है। तो वो कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर डेवलप होंगी अगर वो इस तरह का प्रोग्राम और इंडस्ट्री के साथ ओरिएंट होकर काम करेगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो गैप है स्किल का, इसको दूर करेगा ये प्रोग्राम, WILP प्रोग्राम जो मैंने आपको भी बताया। इसके साथ साथ हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो जैसे मैंने आपको जर्मन वेरिसिटी का एग्जांपल दिया, तो लक्षदीप जी आप, यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस रिस्पेक्ट, कि कैसे हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हम 2 साल बच्चे को यहाँ पढ़ा लें, यहाँ NSQF अलाइन प्रोग्राम में वो रहेगा। क्योंकि देखिए वो भी समझते हैं NSQF लेवल्स को। अगर हम उनको कहेंगे कि जी 5th NSQF लेवल 5 का बच्चा आपके पास हम भेज रहे हैं, दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इफ वी विल से दैट इसने ये QP करा है, तो दे नो दैट व्हाट QP इज, व्हाट नॉस इज, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होता है। तो जी अगर हम इस तरीके से उनके साथ बच्चे को कनेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में तब भी वो चाहे जर्मनी हो गया चाहे कनाडा हो गया, वो बच्चों को डायरेक्टली नहीं लेंगे। वो बच्चे को अपने 3rd ईयर में एनरोल कर, हम 2 साल बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे, थर्ड थर्ड ईयर वो वहाँ पे पढ़ेगा। वहाँ की जो फीस होगी वो वी कैन कोलैबोरेट विद देम। कुछ फीस में हम सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ फीस हम स्टूडेंट से ले सकते हैं। तो इस तरह का एक कंप्लीट एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप हो जाएगा। और जो कोऑप चलता है वहाँ पर, जी तो वो कोऑप भी बच्चा कर सकता है अपनी एजुकेशन के बाद। और वहाँ पे तो उन लोगों को वो वीजा मिल जाएगा शुरू में, 2 साल या 3 साल का रहता है शायद वो वर्क वीजा, जो एजुकेशन के बाद वो कोऑप में यूज कर सकते हैं और उस दौरान अपनी एक जॉब्स को तलाश भी सकते हैं। तो ये नहीं इस उसमें तरह। सर मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ सर मैं। जी इसमें जी। सर कोऑप का ऐसा होता है, जैसे भी कनाडा की बात करें स्पेसिफिकली, तो हम्म। कोऑप ऐसा होता है स्टडी के बाद उनको 3 महीने या 6 महीने का मिलता है वो, ठीक है। जी। और कोऑप खत्म हो गया, स्टडी खत्म हो गई, तो उसके बाद अगर बच्चा डिप्लोमा कर रहा है तो उसको हम्म। 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और अगर हम्म। बच्चा यहाँ से बैचलर्स करके जा रहा है तो उसको 1 साल का मिलता है। और हम्म। अभी गवर्नमेंट की ये बात चल रही है, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है ये, कि इसको फ्लैट कर दो सभी बच्चों के लिए 5 साल का। तो हम्म। लेकिन वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी वो तीन हम्म। साल का ही है। वो हो जाएगा लवदीप जी, जिस जो इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है उसमें ये जी चीजें तो डेवलप होंगी ही होंगी। तो जी चीजें बहुत फेवरेबल हैं हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए। हमें बस जी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को टैप इन करना है। मतलब अगर आपका मैं सबसे बड़ा रोल बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स लाना आपका रोल अभी नहीं हो सकता। अभी आपका फर्स्ट रोल जो है वो है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ अगर हम लिंक कर पाए तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आएंगे ही आएंगे। आप सीधे सीधे बता जी सकते हैं कि हमने SDSU को एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है, and now you can do this program with this university and the university in Germany
जो भी XYZ यूनिवर्सिटी होगी उसके साथ आप हम्म। टाई अप में ये प्रोग्राम कर सकते हो, फिर वहाँ आपका स्टूडेंट के साथ रोल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट को ऑफर करने के लिए कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं है, बिकॉज विदाउट फॉरेन यूनिवर्सिटी इट विल बी डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। जी। तो इस तरीके से आपका काफी बड़ा इनपुट आ सकता है। ये चीजें मॉनेटरी वाइज थोड़ा लेटर कन्वर्ट होंगी, बट अगर आपके पास मतलब कोलैबोरेशंस लेकर आप आते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो ये हो सकता है। स्टूडेंट वाइज तो लेटर ऑन ही होगा। ऑब्वियसली सर। अच्छा, इसमें अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास ऑफिस सेटअप है, रिसेप्शन एरिया है, सब कुछ है, तो इसके अलावा मुझे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? आपके पास ऑफिस सेटअप है, रिसेप्शन एरिया है, क्लासरूम और लैब फैसिलिटी भी है क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब स्पेस है क्या? जी, स्पेस है। ओके। ओके, देखिए जरूरी नहीं है, अगर आप कहते स्पेस नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं है कि बात आगे नहीं कर सकते। आप एक बार मुझे अगर थोड़ा सा मेल करेंगे कि आप किस तरह से कोलैबोरेट, क्या एक्शन प्लान रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी वो आएगा ना, तो आई कैन डेफिनेटली टेक कनेक्ट यू विद समवन रेलेवेंट पर्सन हु कैन गिव यू दी सोल्यूशन एज पर योर नीड। अगर आपका इंफ्रा या नहीं दैट तो भी आप दैट्स कनेक्ट व्हाट कर आई सकते वाज ट्राइंग टू आस्क यू कि अब मैं, इज इट पॉसिबल कि आई विल कॉल यू टुमारो? हैं। हाँ, डेफिनेटली सर, यू कैन कॉल मी टुमारो। एंड जैसे देखिए आपका अब डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप है आपका, आप ग्लोबल एड्यू लिंकर्स हैं, तो आपका जो है वो सेटअप जो है वो क्लासरूम स्टाइल का ना हो करके एक यू मस्ट बी वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस और IDP। तो No, I'm basically working as a career counselor and recruitment partner only. That's it. ओके, 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 that's in fact nice. So that way we can associate. तो अपन बात करते हैं लखदीप जी, we will talk, we will find out a way So of I'll I'll collaboration. I'll call you tomorrow. At what time it is comfortable for you, sir? uh, uh, if you can call me on Monday Yeah, around that 11, that would be great. that sounds good, sir. Sounds Yeah, good. that would be great. Thank you, Lakdeep ji. Thank you, sir. Thank you. So nice of you. Any other question? Mahima ji, I think we have ये taken up all the questions. यस सर, आई गेस सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो लेट्स एंड दिस मीटिंग अभी के लिए। अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट होता है तो हम इस मीटिंग के बाद एक मेल भेजेंगे सभी को। उसके बाद उसमें आपको NCSD का MOU मिलेगा। उसके बाद अगर आपको इसके लिए कुछ डाउट होता है तो आप मेल में ही नीचे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते Uh, हैं। हाँ, इसमें मेरा भी ये कहना है कि प्लीज गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, these are just for your reference, ready reference, and at the same time you can connect with Mahima ji or me for your interested queries. आपका जो भी प्रोफाइल होगा या जो भी इंटरेस्ट होगा आपको उस डायरेक्शन में वी विल टेक यू फॉरवर्ड।